So the first step for creating the project is to create the virtual environment. And for creating the virtual environment, the command is python -m. It means I'm commanding one of Python manager to come in action, and I'm commanding pip to install, upgrade for the modules or for the packages that I am going to list. These are pip, wheel, and virtual env. So my pip is now going to download the upgraded version of pip, wheel, and virtual env. So it is saying my requirements are already up to date. So it is saying that. So we can move ahead directly. So let's clear the screen. The command to create the virtual environment is python-m. The manager which helps you to create the virtual environment is named virtual env, and then your virtual environment name you need to give. But before doing that, let me create a folder over here. Okay, so make directory with name COVID assist. I'm creating COVID assist name, COVID assist named folder over here. Okay, so let's route to that folder COVID assist and create the environment over here. So python-m, not pip, virtual env. Create a virtual environment named COVID environment. So COVID environment. So let's say COVID N. Okay. So now it is creating the virtual environment for me. Then I will activate this environment and move further. We will be studying about various third party modules during this thing. हम काफी सारे third party modules के regarding इस पूरे project में बात करेंगे पढ़ेंगे. For activating the virtual environment, the command is for Windows is call environment, whatever the name of your environment is, scripts activate. If you are using Linux or Mac OS, then command would be other than this, like call will be replaced by the source and scripts will be replaced by the bin. अगर आप basically Mac OS या Linux का कोई भी flavor use कर रहे हो. Sir, can I ask you a question? Yeah, ask. Sir, if I am using Spider, then how If should you are I using go about it? if you are using the Spider for deploying a project, I will never recommend you that, just because Spider uses the virtual environment of Anaconda. अगर आप उसमें Spider के शेल पे फ्रीज आप करोगे तो आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे ऑलरेडी, जो कि हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज नहीं होगी. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट. मैं इसकी आपको exe फाइल बनानी भी सिखाऊंगा. तो ड्यूरिंग दैट हम इसे फुली डिप्लॉयबल रखेंगे कि मैं आपको भी हैंडओवर करूँ, आप बिना फाइल इंस्टॉल कर इसे चला सको. वो काम आप नहीं कर पाओगे अगर आप स्पाइडर के थ्रू करोगे. Okay. So what do you recommend? How should I? I personally recommend VS Code. I personally use VS Code. Even at industrial level, I used to use VS Code in my company as well. Okay, that is well and good. You can go for some other like Atom or Sublime as well, but I would never recommend the Anaconda stuff. Okay, वो मैं use करता हूँ, but Okay. during data science and machine learning, not during Python. Okay. All right. Okay. So activate the environment. सर Yeah. एक्सक्यूज मी सर ऊपर वाला जो आपने कमांड लिखा, Let's activate the environment. Environment have been activated, and if the environment activated successfully, you will find your stuff over here. Okay, your environment name is written over here, that is prefixed. So let's clear the stuff and create the project structure. So copy space con main.py. This is the main module that you are going to deal with. यही हमारा मेन मॉड्यूल होगा जिसके साथ हम काम करने वाले हैं पूरा. ठीक है, दिस इज आवर मेन मॉड्यूल. इसी को हम सिर्फ एग्जीक्यूट कराएंगे. लेट्स क्रिएट दिस मॉड्यूल. और जस्ट बिकॉज आई एम टू यूज टू ऑफ दिस डॉस, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू यू आल्सो यूज दिस डॉस. आप जैसे एक पाइथन का मॉड्यूल बनाते हो वैसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये फास्ट है. इसके बाद मैंने एक पैकेज बनाया है जिसका नाम है वॉइस इनपुट. ठीक है, एक वॉइस इनपुट नाम से मैं पैकेज बना रहा हूँ, और एक्चुअली पैकेज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक मॉड्यूल बना रहा हूँ वॉइस इनपुट नाम से. सो कॉपी स्पेस कॉन वॉइस इनपुट. आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये मॉड्यूल हमारे लिए क्या हेल्प करेगा. ये हमारे को वॉइस में इनपुट लेने में हेल्प करने वाला है. ठीक है, सो इस मॉड्यूल में हम वॉइस इनपुट रिगार्डिंग कोड करेंगे. इसके बाद कॉपी स्पेस कौन एक बनाया मैंने वॉइस आउटपुट. ठीक है,
ये एक हमने बना दिया वॉइस आउटपुट डॉट पी वाई। इसके अंदर हम बेसिकली वॉइस आउटपुट रिगार्डिंग सारा स्टफ में कोड करेंगे कि जब हमारे को अपने प्रोग्राम से स्पीक करवाना हो तो उसके रिगार्डिंग सारा कोड हम इस मॉड्यूल में करेंगे। आई एम कैटेगराइजिंग द स्टफ, मैं सब कुछ एक ही मॉड्यूल में नहीं लिख देने वाला जस्ट बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्ट लेवल कोड। ये प्रोजेक्ट लेवल कोड है तो इसमें आप कुछ भी चीजें ऐसे ओपनली नहीं लिखने वाले। इसके बाद एक और मॉड्यूल मैंने बनाया है कॉपी स्पेस कॉन, एक है गेट डेटा मॉड्यूल। ठीक है, इस मॉड्यूल में हम बेसिकली इंफॉर्मेशन गेट करेंगे अबाउट द कोरोना वायरस स्प्रेड। ओके, सो इस वाले मॉड्यूल के अंदर हम इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, गेट करेंगे अलग अलग जगहों से, फिर इन सब में लिखा हुआ पूरा का पूरा कोड हम साथ में जोड़ जोड़ कर इस मेन के अंदर बनाएंगे। ओके, so let's get started with voice input और output first. Okay, so voice input और output के साथ पहले start करते हैं। तो let me open this project in the VS Code. Okay, so I'm opening this project into the VS Code और कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ 3 खाली Python के मॉड्यूल बनाए हैं inside the COVID assist। हमारे पास एक COVID env है और हमने यहाँ पर 3-4 मॉड्यूल बनाए हैं Python के, इनके अंदर हम कोड करेंगे। अब हमारा फाइनल कोड इनके अंदर होगा। Okay, so let's get started now. Let's talk about the voice input first. For getting input, हमारे को voice input लेना है from the user. User is not going to interact with the keyboard or mouse anymore. The user is going to give the voice input. For getting voice input, what you need to do is, I said earlier basically कि every code in Python is already written. So Python module to have voice input. So I have googled over it for doing that, and we found a module, speech recognition. Speech recognition, this is the module that is getting used for recognizing the speech input. So मैंने इसे कॉपी करा, हमारे प्रोजेक्ट की फर्स्ट डिपेंडेंसी आई है। सो हमारी पहली डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल करी लाइक दिस। जितने ही इंस्टॉल हो रही है, लेट्स लर्न अ बिट अबाउट इट, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा ये बनाया हुआ मॉड्यूल नहीं है तो हमें तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड यू कैन सी कि इसे इंस्टॉल करने के लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ ये कमांड यूज करनी है, pip install स्पीच रिकॉग्निशन। और लाइक लेट्स गो लिटिल बिट डाउन, और यहाँ पर इन्होंने कुछ दे रखा है इनकी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग या नहीं, लेट्स सी। सो इन्होंने दिखा रखा है कि किस तरीके से आप खोल सकते हो इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, वॉइस इनपुट ले सकते हो। वॉइस इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको पहले, फिर अगर आपको माइक्रोफोन्स वगैरह की लिस्ट देखनी है तो आप इस तरीके से माइक्रोफोन्स की लिस्ट दे सकते हो, आपको पूरी माइक्रोफोन्स की लिस्ट दिख जाएगी। अगर आपको और चीजों के बारे में देखना है, पाई इंस्टॉलर किस तरीके से इंस्टॉल करते हो, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हम फर्दर देख सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमारे को सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर यहाँ पर भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले तो आप बेसिकली खुद से भी उस मॉड्यूल के बारे में स्टडी कर सकते हो, जिसमें हमारे को VS कोड फुल सपोर्ट करेगा। सो लेट्स सी कि इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। सो इट इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नाउ। सो लेट्स गेट ओवर हियर। एंड वॉइस इनपुट मॉड्यूल के अंदर सबसे पहली चीज इस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग। दिस मॉड्यूल कंटेन्स various functions to have voice input। इस मॉड्यूल के अंदर काफी सारे फंक्शंस मैं बनाने वाला हूं जिनकी हेल्प से हम वॉइस इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपोर्ट किसे इंपोर्ट करना है मेरे को? स्पीच रिकॉग्निशन। यहाँ पर हमारा ये VS कोड रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन स्पीच रिकॉग्निशन अगर आप देखोगे आपके एनवायरनमेंट के अंदर, अब वहां पर ये कोविड एनव जो है हमारा, इसके अंदर लिब के अंदर साइड पैकेजेस के अंदर यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन नाम से एक फोल्डर बन चुका है। ठीक है, पैकेज बन चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इसमें हेल्प भी ले सकते हो। इसके साथ कैसे वर्क करना है, जस्ट बिकॉज ये एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है तो हमारे को भी इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। सो लेट्स गूगल ओवर इट। और गूगल करने से कभी भी पीछे मत हटो गाइस, क्योंकि ये लिखा लिखाया कोड है, हम तो लिख नहीं रहे। तो इसे यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज स्पीच रिकॉग्निशन इन पाइथन।
इट इज सेइंग लाइक ये वीडियो भी मिल गई हमारे को, वीडियो ट्यूटोरियल भी है, रियल पाइथन पे भी बता रखा है हमारे को, गीक्स फॉर गीक्स पे भी बता रखा है हमारे को, स्पीच रिकॉग्निशन के ओरिजिनल एपीआई पे भी बता रखा होगा हमारे को। सो इट इज सेइंग कि स्पीच रिकॉग्निशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके लिए इंटरनल डिपेंडेंसी है इसकी एक और, दैट इज पाई ऑडियो, तो हमारे को ये भी चाहिए होगा। सो चलो पाई ऑडियो को भी इंस्टॉल करते हैं हम। सो पाई पाई मैंने यहाँ पर लिखा पाई पाई और यहाँ पर लिख दिया पाई ऑडियो, ठीक है। सो दिस इज आर पाई ऑडियो, मैं लुक कर रहा हूँ इसके लिए, और नाउ वी विल गेट द कमांड, क्योंकि एक मॉड्यूल एक एपीआई दूसरे एपीआई पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, तो आर स्पीच रिकॉग्निशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस पाई ऑडियो। सो मैंने इसे कॉपी करा, एक डिपेंडेंसी और बढ़ी हमारे प्रोजेक्ट की, और यहाँ पर आकर मैंने उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करी। बट दिस पाई ऑडियो बेसिकली ज्यादातर सिस्टम्स में ये खुद ब खुद इंस्टॉल होता ही नहीं है, एरर दे देता है, जैसे कि अभी मेरे सिस्टम पे मिल रहा है। तो आपको अगर कभी भी किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते टाइम कोई भी एरर आए, तो आप उस मॉड्यूल को खुद से मैनुअली भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, खुद से मैनुअली ढूंढ के भी डाल सकते हो। अब वो करोगे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर सर्च करो पाइथन अनऑफिशियल बाइनरीज। लेकिन ये मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन बाइनरीज को इंस्टॉल करो, ये तब का सिनेरियो है जब हमारे पास कोई और वे बचा ही ना हो। तो हमारा पाइऑडियो खुद ब खुद तो इंस्टॉल हो नहीं रहा है, इसीलिए हमने अनऑफिशियल बाइनरीज की मदद कर ली। अनऑफिशियल बाइनरीज की साइट पे विजिट करोगे तो ये सारे पाइथन के मॉड्यूल्स के ही नाम है। इसमें सर्च करो लुक फॉर अ मॉड्यूल बेसिकली, सो लेट मी फाइंड पाई ऑडियो। सो मैंने एक पाई ऑडियो मॉड्यूल के लिए लुक करा, एंटर। सो दिस इज द पाई ऑडियो फीचर एंड दिस इज द पाई ऑडियो व्हील्स फाइल्स, ओके। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी पाई ऑडियो की फाइल्स दे रखी है, लेकिन आपको कौन सी इंस्टॉल करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। अब वो कैसे आप देखोगे बेसिकली, सो लेट मी फर्स्ट डू वन थिंग, चेक माय पाइथन वर्जन, कि मेरे पास पाइथन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं पाई ऑडियो इंस्टॉल करूँ। सो मेरी पाइथन है पाइथन 3.8.2। कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ये? 64 बिट AMD 64 बिट ऑन विंडोज 32। ये मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन है। पाइथन 3.8 कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेरे को पाई ऑडियो को डाउनलोड करना है। तो चलो इसे डाउनलोड करते हैं। सो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये रही, जिसकी कंपाइल पाइथन हमारी सी पाइथन, इसमें 38 यानी कि 3.8 है, और AMD 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पर है, ठीक है। सो इसको मैं डाउनलोड करूंगा, आप अपने पाइथन के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करोगे कि आपका पाइथन 32 बिट का है, आपका पाइथन कितने बिट का आपका सिस्टम है, वगैरह वगैरह। आप उसके अकॉर्डिंगली इसे बेसिकली डाउनलोड करोगे। तो मेरे लिए ये फर्स्ट वन मैच करती है, ठीक है। सो आई हैव डाउनलोडेड दिस फाइल, और इसे डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या करा, शो इनटू द फोल्डर, यहाँ पर आया और इधर से इसे मैंने कट कर लिया, और जहां मेरा एनवायरनमेंट है मैं वहीं पर जा रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा एनवायरनमेंट ये रहा, इधर ही आकर हमने बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर इस फाइल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो पिप जो काम करता था हमारे लिए, जब हम पिप को बोलते थे कि इंस्टॉल समथिंग, तो पिप हमारे लिए ऑनलाइन खुद जाकर सर्च करता था। सर्च करने वाला काम हमने कर दिया है इसे, ठीक है। कंपाइल्ड एक्सटेंशन व्हील, या सो ये कंपाइल्ड एक्सटेंशन व्हील है, या ये व्हील की फाइल है हमारी बेसिकली, ठीक है। सो पाइथन -m पिप इंस्टॉल, किसे इंस्टॉल करने को कह रहा हूँ मैं, जो फाइल हमने अभी डाउनलोड करी, मैंने उस फाइल का नाम दे दिया, पूरा प्रॉपर लोकेशन, वो फाइल यहाँ पर लोड होगी। प्रेस एंटर, वेट फॉर अ व्हाइल, नाउ इट इज ट्राइंग टू डाउनलोड दिस थिंग और इंस्टॉल दिस थिंग बेसिकली, लेकिन इसने एरर दे दिया कि मेरे सिस्टम में ये नहीं चल रही। और अभी जस्ट मैंने ये एग्जीक्यूशन करवा कर देखी थी, तो ये हमारे लिए हो रही थी। लेट मी जस्ट डीएक्टिवेट द एनवायरनमेंट फर्स्ट and then we will move further. So pip install pyaudio. So wait for a while. Error, it is saying wheel is not supported wheel on this platform. Okay, so एक और होगी हमारे पास यहाँ पर downloaded. Let's get over there. Downloads, ये रही, देखते हैं py python wheel, ये रही हमारी wheel, copy over here. Let me delete this thing, let me put this thing over here,
paste and again python -m pip install pyaudio, press enter, wait for a while, requirement already satisfied it is saying। ये तो मेरे global python में installed है, लेकिन मेरे को मेरे environment में install करनी है। so उसके लिए हमारे पास environment है ये, मैं इसे activate कर रहा हूँ again, और अब ट्राई करते हैं pip install pyaudio। so wait, so processing, building successfully installed the pyaudio। कई बार हमारे लिए जो थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल इजीली नहीं होते, तो हमारे को उन्हें खुद मैन्युअली जाकर सर्च करना पड़ता है और फिर हम उसे इंस्टॉल कर पाते हैं। तो हमने pyaudio इंस्टॉल कर लिया है, जो कि डिपेंडेंसी है किसकी, इस स्पीच रिकॉग्निशन की, वॉइस इनपुट लेने के लिए हमारे लिए ये यूज होने वाला है। ओके इसके बाद फर्दर मूव करोगे तो यहाँ पर माइक्रोफोन नेम, किस माइक्रोफोन से लिसन करना चाहते हो, रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट बना रखा है, माइक्रोफोन को खोल रखा है, मतलब बहुत सारा फर्दर टास्क इसमें परफॉर्म कर रखा है कि विद दिस ऑडियो फाइल एंड ऑल। सो हम कुछ इन्हीं को यूज करके बेसिकली अपने लिए अब यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्पीच रिकॉग्निशन को एज SR इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, मैंने इस स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को एज SR इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद इस स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मेथड्स एंड फंक्शन अवेलेबल होंगे। सो एक होगा इसके अंदर रिकॉग्नाइजर, या क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं वो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉपरली देख सकते हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी websites, basically go to the official documentation for that which you can find from the PyPy, जहाँ से हमको इसे इंस्टॉल करने की एक ऑफिशियल वो मिली थी बेसिकली कमांड। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, डेवलपर लाइसेंस, मैक ओएस, पाइथन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स, रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, इंस्टॉल एडिशनल पाई ऑडियो, इसने देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पाई ऑडियो इज रिक्वायर्ड थिंग, ये रिक्वायर्ड है इसके लिए। सो ओनली डायरेक्टली वो वर्क नहीं करने वाला है। और फर्दर नीचे देखोगे इसमें काफी सारे एपीआई दे रखे हैं, कैसे वो यूज होंगे। और लेट मी जस्ट लुक फॉर समथिंग, माइक्रोफोन्स, calling, various things are available over there, developer, testing, socket, flag, authors, license। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दिख रही है गाइस किसी को? what has just happened? documentation link, I'm trying to find the documentation link। माइक्रोफोन क्लास, हम इस माइक्रोफोन क्लास को यूज करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है, सारे स्टफ को बेसिकली इसमें से कुछ कुछ चीजों को हम यूज करेंगे। तो चलो वापस से चलते हैं, लेट्स गेट बैक टू आवर कोड फर्स्ट। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका एक रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। सो रिकॉग्नाइजर जो क्लास है हमारी उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, रिकॉग्नाइजर, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, और जिसे मैंने स्टोर कर दिया REG OBJ, रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट नाम से एक वेरिएबल बनाकर उसमें मैंने स्टोर कर दिया इसे, ठीक है। उसके बाद मुझे माइक्रोफोन स्टार्ट करना पड़ेगा और उस माइक्रोफोन को फिर मुझे लिसन करना पड़ेगा, मतलब उस माइक्रोफोन की हेल्प से मैं माइक्रोफोन को अपने एक्टिवेट करूंगा और वहां से रिकॉर्डिंग करूंगा। तो इसके लिए विद ये पाइथन की एक स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पर SR स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर एक क्लास हम अभी देखकर आए थे जिसका नाम था माइक्रोफोन। मैंने उस क्लास को ओपन करा और उसको मैंने एज सोर्स ओपन करा, ठीक है। मैंने बोला कि इस माइक्रोफोन को एज सोर्स ओपन कर लिया जाए, मतलब इस सोर्स को स्टार्ट कर दिया। फिर मैं एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऑडियो फाइल हमारा रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट जो है, इस पे .listen कमांड ये एक है हमारी, इसके थ्रू ये बेसिकली हमारे लिए कॉल करेगा, ठीक है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग VS कोड से भी हेल्प चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पीच रिकॉग्निशन ऑब्जेक्ट हमारा मॉड्यूल है ना, इसको हमारे को अपनी ग्लोबल पाइथन के लेवल पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे ये हमारा VS कोड भी इसके रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। सो मैंने बोला पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच में S कैपिटल था, रिकॉग्निशन में R कैपिटल था, रिकॉग्निशन, ओके। सो स्पीच रिकॉग्निशन को मैं ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे बेसिकली पाइथन के अंदर, जिससे मेरा VS कोड भी उसके रिगार्डिंग हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करा सके।
सो ये इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल्ड। अब मैंने अपने एनवायरनमेंट को वापस से एक्टिवेट कर लिया और VS कोड को यहाँ पर अब मेरे को मेरे स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के ऊपर भी हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। सो कंट्रोल अभी वर्क नहीं कर रहा है, मेरे को एक बार रीलोड करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को, तब ये वर्क करेगा। सो मैं एक बार इसको बंद करके VS कोड को दोबारा से यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ, कोड डॉट। वेट या डेफिनेटली अभी मैं वो विद वाला कमांड समझाऊंगा पूरा प्रॉपरली। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट गेट हेल्प ऑन दिस मॉड्यूल कि मेरे को इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग VS कोड सपोर्ट करा रहा है हेल्प या नहीं। सो सोर्स, मुझे इस सोर्स पे लिसन करना है। सी विद माइक्रोफोन मतलब ये क्लास है हमारी इस स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, जिससे हमने क्या करा है उस माइक्रोफोन को एक्टिवेट करा दिया। तो मेरे सिस्टम का माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाएगा और उस माइक्रोफोन को जैसे हमने यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम दिया REG ऑब्जेक्ट, हमने उस माइक्रोफोन को खोलकर सोर्स नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसे विद की हेल्प से इसलिए खोला है जस्ट बिकॉज क्योंकि माइक्रोफोन एक एक्सटर्नल रिसोर्स है जिसे बंद भी करना पड़ेगा। तो ये विद ब्लॉक जो है ऐसे किसी भी रिसोर्स को खोलता है और ऑटोमेटिकली बंद कर देता है जिसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ रिलेशन हो। आपके पाइथन में से नहीं आया, ये आपके हार्डवेयर से रिलेट करता हुआ है। ये बेसिकली कोई रिसोर्स है जिसे बंद करना नेसेसरी है। सो हमको देखना पड़ेगा पहले कि ये कोड वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो अभी हम लर्न वाला सिनेमा में है क्योंकि हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हैं। सो पाइथन वॉइस इनपुट को मैंने एग्जीक्यूट करा कर देखा। सो हमारे को कुछ एरर्स भी मिल सकते हैं, हमारे को कुछ भी काफी सारी दिक्कत आ सकती है, अभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बेसिकली क्योंकि हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इन मॉड्यूल्स को नहीं बनाया है, हमें इन मॉड्यूल्स की डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिली है, तो हम खुद उसका कोड देख देख कर समझ रहे हैं कि ये कोड क्या वर्क करेगा। ओके, सो डेफिनेटली एरर्स आने वाले हैं, तो हम उन एरर्स को भी फिर सॉर्ट आउट करेंगे। वेट, सो टिल नाउ वी डू नॉट हैव एनी एरर इन आवर कोड। हमारे कोड में अभी तक तो कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ऑडियो रिकॉग्नाइज होने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो हमारा REG ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इस क्लास के अंदर काफी सारे मेथड्स से, उनमें से एक मेथड था हमारा बेसिकली रिकॉग्नाइज गूगल करके, ठीक है। यही एक फ्री वाला है, बाकी सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको रिकॉग्नाइज बीक, रिकॉग्नाइज गूगल क्लाउड, ये सब पेड है। रिकॉग्नाइज गूगल इज द फ्री API, ठीक है। इसको आपको वो ऑडियो जो हमने ऊपर अभी रिकॉर्ड करी है ना वो हैंड ओवर करनी होगी और ये हमारे को बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी डेटा हमने रिकॉग्नाइज करा है ना ये हमारे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। एंड देन आई एम प्रिंटिंग दैट डेटा आउट, मैं उसे फिर प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने उसे बोल दिया, सॉरी नॉट दिस, मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया कि इसने रिकॉग्नाइज करा है या नहीं। और हमारे को पता भी लगना चाहिए कि अब ये रिकॉग्नाइजेशन इसने स्टार्ट कर दी है, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ दे रहा हूँ लिसनिंग, कि यहाँ पर अभी लिसन करा जा रहा है। सेव, वापस से रन करते हैं एंड रन करने के बाद जब हाय हेलो, सो मैंने यहाँ पर कुछ भी बोला अभी, ठीक है। सो इसने अंडरस्टैंड करा वो, एंड सी मैंने कुछ टाइप नहीं करा है, इसने मेरे वॉइस के थ्रू वो इनपुट लेकर मेरे को दे दिया। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड एंड मेक दिस कोड रीयूजेबल। अभी ये कोड रीयूजेबल नहीं है हमारा, इसे अभी हम प्रोजेक्ट लेवल पे यूज नहीं कर सकते। सो अभी ये कोड रीयूजेबल नहीं है, लेकिन अब हम इसे रीयूजेबल बनाएंगे, लेकिन पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्पीच रिकॉग्निशन एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम वॉइस इनपुट ले सकते हैं और रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट हमारे को उस ऑडियो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। ऑडियो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। यहाँ पर विद डॉट SR डॉट माइक्रोफोन से हमने अपने माइक्रोफोन को एक्टिवेट करा, मतलब वर्किंग स्टेट में लेकर आए, और जब तक हमारा बेसिकली हम बोल रहे थे तब तक उसने हमारी जो भी वॉइस हमने बोली उसको सुना। उसको सुनने के बाद बेसिकली उसने क्या करा, हमारे लिए रिकॉग्नाइज करके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इज दिस कोड क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? Yes, sir. Yeah, so Desh is saying yes. So sir, listen is a function. No, listen is a method.
बेसिकली ये अब मेथड और फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन और मेथड दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन मेथड एक क्लास के अंदर बना हुआ फंक्शन होता है। जैसे हमने लिस्ट यूज करा था तो लिस्ट की यूटिलिटी मेथड सपोर्ट हमने पढ़ी थी, ऐसे ही मान लो REG रिकॉग्नाइजेशन ऑब्जेक्ट है एक बेसिकली ये, ठीक है, जिसमें हमारा एक मेथड है ये लिस्ट, ओके, जैसे लिस्ट के पास होते थे। अंडरस्टूड प्रशांत? Recognize Google is a basically method also. It is also a method. Recognize Google is also a method. ये एक मेथड है जो क्लास के अंदर बना हुआ है, जो एक ऑडियो फाइल लेता है जो कि हमने अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करी थी, एंड उस ऑडियो को हमने हैंडओवर करके यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन के लिए भेज दिया। What it is doing exactly? It is converting audio file to string. Recognize Google is converting audio file to string जो हमने अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके दी थी। अंडरस्टूड?